Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 2.1. Exercise 2.1. Okay. Which in question first, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not state region for your answer. Okay. Part first. 4x square minus 3x plus 7. Okay. ये आपको बताना है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है. ओके. तो आंसर होएगा यहाँ पे पावर वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल x. ओके. एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर. सो दिस एक्सप्रेशन इज ए polynomial, or we can say this algebraic function is a polynomial. Okay. And in polynomial one variable is present, one variable x is present, so this is a polynomial in one variable. Okay. तो अपन राइट करेंगे in this polynomial, in this expression कह लो या algebraic function कह लो, in this expression power of variable x in the form of whole number, so this is a polynomial. Okay. In this expression power of variable x in the form of whole number, so this is a polynomial. And in this polynomial only one variable x is present, only one variable x is present.
present so this is a polynomial in one variable, polynomial in one variable, okay, polynomial in one variable, यानी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आप एक्सप्रेशन भी अपन बोल सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन क्यों है? बिकॉज इनमें ऑपरेशन ऑपरेट हुआ है कौन कौन से, मल्टीप्लाई का, माइनस का एंड प्लस का, और किन किन के मिडिल में हुआ, नॉन वेरिएबल एंड वेरिएबल के मिडिल में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, व्हेन वी ऑपरेट द ऑपरेशन बिटवीन only variable and non-variable both, then the function is known as algebraic function, okay। और algebraic function किसमें चेंज हो जाएगा? पोलिनोमियल में। when in a algebraic function power of variable in the form of whole number, then the algebraic function is known as polynomial. So in this expression, or we can say algebraic function, यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है तो ये algebraic function हो गया। in this expression power of variable x, ये power of variable x है, power of variable x यहाँ पे भी x power 0 है, it means यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं, 1 power 0, x power 0 1 को, तो यहाँ पे power of variable क्या है बोलो? Power of variable x in the form of whole number, so this is a polynomial। ये तो हो गया according to definition of polynomial, okay। अब इसमें आप चेक करो कि how many variable in this polynomial, तो in this polynomial only one variable x is present, so this is a polynomial in one variable, okay। in this polynomial only one variable x is present, so this is a polynomial in one variable। अब जो आपको हमने बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिनोमियल कराए थे जो पिछले वीडियो में, तो उसमें अब आपको नॉलेज भी आएगा कि हमने आपको बेसिक में क्या करवाया, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल है, second is y square plus root 2, y square plus root 2। अब इसी में मैं कुछ और बता देता हूं आपको। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म दिस इज टाइप ऑफ ट्राइनोमियल, 1 2 3 टर्म अवेलेबल है, तो ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप हो गया? ये ट्राइनोमियल। एंड अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। ये भी आपको नॉलेज के लिए बता दिया। हाउ मेनी टर्म इन दिस पॉलिनोमियल? 3, 1 2 and 3, ओके। और हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल? ओनली 1 x, ओके। How many operation operate in this polynomial? Multiply, minus and plus, okay। 3 operation operate हुए हैं। Classification of operation into 4 types: plus, minus, multiply and divide, okay। तो now similar question है, ये राइट करना आपको, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। बस इसमें क्या होएगा? in this polynomial, in this expression power of variable y, power of variable y, बस x की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे आप? y, power of variable y in the form of whole number, so this is a polynomial, ठीक है, ऐसे राइट करना है। in this expression
or we can say algebraic function. Power of variable y in the form of whole number. अब 2 होल नंबर है, यहाँ पे भी 1 है और 1 किधर गए, 1 के प्लेस पे y पावर 0 है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म में y पावर क्या है, वेरिएबल पावर क्या होती है, 0, ओके। फॉर्म ऑफ होल नंबर, so this is a polynomial, okay, and in this polynomial, अब तो polynomial प्रूव हो गई, in this polynomial only one variable y is present, only one variable y is present, so this is a polynomial in one variable, so this is a polynomial in one variable, okay. Part third, 3 root t plus t root 2. अब इट मीन्स क्या है, t है वेरिएबल और t पावर अंडर रूट मीन हाफ, यानी इसको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं, t 3t पावर हाफ प्लस t पावर 1 को राइट करने की नीड नहीं है, रूट 2, ओके। ये रूट मीन्स हाफ पावर ऑफ बेस होता है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, इन दिस एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल t is not in the form of whole number, so this is not a polynomial, this is only algebraic function, okay। तो polynomial ही नहीं है ये तो in this expression आंसर हो जाएगा, in this expression power of variable t is not in the form of whole number, ओके। यहाँ पे तो होल नंबर में है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, हाफ पावर होल नंबर में नहीं है, होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए polynomial, this is a algebraic function, this is a only algebraic function, okay। तो in this polynomial in this expression power of variable t is not in the form of whole number, so this is not a polynomial, this is only this is a only algebraic function, okay। या only यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, algebraic function only, क्लियर। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, तो आपको पता चल रहा होगा पोलिनोमियल
और अलजेब्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये 3 पार्ट्स आपको समझ में आ गए। अभी नेक्स्ट 4th पार्ट है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल कैसे होगा, ठीक है। Our 4th part is y plus 2 upon y। इस y को अपन, ये y वेरिएबल है यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन में, तो y plus 2 इंटू वाई को अपन ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, तो साइन ऑफ पावर विल बी चेंज। ये y पावर 1 प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -1। तो इन दिस expression power of variable is not in the form of whole number, so this is not a polynomial, this is only algebraic expression या algebraic function। okay, तो आंसर क्या है इसका, in this expression power of variable y is not in the form of होल नंबर। ये -1 होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर डेफिनेशन ऑफ होल नंबर क्या होता है, व्हेन वी जॉइंड 0 इन नेचुरल नंबर, इट मींस द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, देन द नंबर इज नोन एज होल नंबर। ओके, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। सो दिस इज नॉट ए polynomial, this is a algebraic function only, okay। Last part of question first, x power 10 plus y cube plus t power 35 50 sorry, okay। In this algebraic function 1 2 3 x y and t are variable, 3 वेरिएबल है, और पावर ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, सो दिस इज ए polynomial, but this is not a polynomial in one variable, because in this polynomial 3 वेरिएबल x y and t are present। ओके, तो आंसर होएगा इन दिस एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल x y and z in the form of whole number, so this is a polynomial। in this polynomial, this, अब तो ये polynomial हो गया। ओके,
in this polynomial three variable x, y and t are present. So this is not a polynomial in one variable, because three वेरिएबल प्रेजेंट है तो वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है. ओके. In this expression it means algebraic function power of variable x, y, t in the form of whole number. Okay. So this is a polynomial, and in this polynomial three variable x, y and t are present. So this is not a polynomial in one variable. Clear? So first question is complete. Now second question. Write the coefficients of x square in each of the following. Write the coefficients of x square in each of the following. In each of the following. ओके. एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी थिंग होएगी वो क्या होगी? कोफिशिएंट होएगी. तो पार्ट फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में +1 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? +1 होएगा. कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक 1 है. ओके. 1 किसका है? प्लस का. तो आंसर होएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1. If number or digit multiply with other number or digit, then multiplier digit is known as coefficient of other digit or number. Okay. तो ये नंबर इसके मल्टीप्लाई में है तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई में है ये इस अदर नंबर का क्या होगा? कोफिशिएंट. जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके मल्टीप्लाई में जो भी थिंग है वो आप राइट कर देंगे. क्लियर? सेकंड इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. आंसर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 है और 1 किसका है? माइनस का. तो -1 हो जाएगा. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछता तो 1 हो जाता. कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इट मींस एक्स पावर 0 इट मींस 1 तो वो क्या हो जाता? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या है? 2 है. क्लियर? ये आपको एग्जांपल हमने दिए थे बेसिक में. ओके. थर्ड इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो आंसर होएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? π/2 है तो π/2 कोफिशिएंट होगा. फोर्थ इज √2 x minus 1. In this polynomial term of x square is absent.
ये राइट कर सकते हैं, इन दिस पोलिनोमियल term of x square is absent. ओके, सो अब टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या आएगा? 0. कोफिशिएंट ऑफ x square is equal 0. क्लियर? जैसे प्योर क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल था, उसमें bx का टर्म क्या था? 0. ओके, तो वैल्यू ऑफ b अपने फाइंड की थी तो क्या आया? 0. जब टर्म ही नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट ऑटोमेटिक क्या होगा? 0 होगा. ओके, अब थर्ड है क्वेश्चन थर्ड. Give an example each of a binomial degree 35. Give an example each of a binomial, each of a binomial. Okay, binomial of degree 35, of degree 35, and of a mononomial, and of a mononomial monomial. Okay, of degree 100. Degree, it means power. Degree, it means power. तो एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35, एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री it means power, डिग्री 35 क्या होगा? जैसे आपने एक वेरिएबल लिया x, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? शुड बी 35. यहाँ पे कुछ भी 7 राइट कर दिया आपने. ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? मोनोनोमियल का. बट अपने को बाइनोमियल, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म और राइट कर दो. जैसे आपने 5 राइट कर दिया, 7 राइट कर दिया. तो यहाँ पे वेरिएबल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 35 एंड 2 टर्म अवेलेबल. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल. बाइनोमियल 2 टर्म है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. इट मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 35. क्लियर? एंड एग्जांपल of a monomial of degree, it means power 100. तो आपने एक कोई भी वेरिएबल लिया, उसकी पावर 100 है, यहाँ पे उसका कोई भी कोफिशिएंट ले लिया. ओके, तो ये मोनोनोमियल है और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 100. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100.
ओके, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? 100 होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल, इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomial. Write the degree of each of the following polynomial. डिग्री इट मीन्स पावर राइट करनी है। तो फर्स्ट इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। ओके, तो पावर और वी कैन से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? 3। सेकंड, मैक्सिमम पावर राइट करनी होती है, डिग्री और पावर सेम थिंग, क्लियर। 4 माइनस y², तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो आंसर होएगा पावर और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल टू। ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ according to power of variable, this type of polynomial is cubic polynomial and this is quadratic polynomial. maximum power 2 है, तो ये quadratic polynomial हो गया। और according to number of term, this is trinomial and this is binomial. okay, third is 5t minus √7। तो आंसर पावर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर क्या है? वेरिएबल टी है, मैक्सिमम पावर 1 है। तो अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल, दिस टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, दिस टाइप इज बाइनोमियल। क्लियर? ये अपने को राइट नहीं करना, ये डिग्री आपको पूछी हुई है इस क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट इज 3। यहाँ पे 3 को अपन राइट कर सकते हैं 3 इंटू कोई भी वेरिएबल, उसकी पावर 0। तो ये मैक्सिमम पावर क्या है? 0 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 3 को 3 इंटू 1 राइट कर सकते हैं और 3 इंटू 1 को 3 इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि कोई बेस ऑफ पावर इज 0, देन वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगी? 1 होगी। आंसर यानी 1 है तो 1 की पैलेस पे अपन एक्स पावर 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 0 है, तो ये 0 डिग्री का होगा। पावर और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 0। ओके, तो ये 0 नोमियल का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? 0 नोमियल का। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन। Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. Classify the following
as linear the following as linear quadratic and cubic polynomials. क्लासिफाई करना है इनको एंड क्यूबिक polynomial. Okay, first part is x square plus x square plus x. Okay, तो इसमें आंसर होएगा the degree of the given polynomial is 2. The degree of या power of variable degree और power same thing of the power of maximum power, ये राइट करो, मैक्सिमम पावर उसी को डिग्री बोलते हैं अपन. मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री. मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इन गिवन polynomial. Okay, so it is a quadratic polynomial. Okay, second is x minus x cube. The maximum power of variable is 3. The maximum और मैक्सिमम पावर को क्या बोल सकते हैं? डिग्री. मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 in given polynomial. So it is a cubic polynomial. Okay. Third is y plus y square plus 4. Y plus y square plus 4. The maximum power of variable is 2. Answer होएगा the maximum power of variable is 2 in given polynomial. So it is a quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial. Okay. Third is fourth part. 1 plus x यहाँ पे x पावर ऑटोमेटिक 1 है, तो आंसर द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल
is 1 in given polynomial, so it is a linear polynomial. It is a linear polynomial. Okay. Fifth part, 3t. Maximum power of variable is 1. The maximum power of variable is 1. Variable is 1 in given polynomial, so it is a linear polynomial. It is a, चाहे और टर्म आए चाहे न आए, मैक्सिमम पावर वाला टर्म आ जाएगा तो लीनियर होगा, ठीक है। और प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। इट इज ए लीनियर polynomial. ओके। सिक्स्थ, आर स्क्वायर। अब रिमेनिंग टर्म क्या है, एब्सेंट है, तो आंसर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 2 in given polynomial, so it is a quadratic polynomial. So it is a quadratic polynomial. Okay. लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करवा देता हूँ। 7th पार्ट, एक्स क्यूब है ओनली, तो ये टर्म आ जाए और एब्सेंट है, रिमेनिंग टर्म इज एब्सेंट। ओके, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इन गिवन पॉलिनोमियल, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये क्लासिफाई करना था। तो एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ओके, थैंक्स।